I am personally grateful to head of the department, Professor Goraya, my PhD students, Raza, Mudassar, and of course, Danish Awan, my student sitting over here. So it is a nice time for me to be here and then talking to students of my students. When Raza asked me to come here for this conversation, I deliberately selected this topic, keeping in view your academic needs. In your BS program, you must be going through Greek drama, Elizabethan drama, modern drama, etc. So I thought it more viable to give you an overview of history of this great cultural contribution of Greeks when they were as a nation of culture at the top of the world cultural landscape. First, I will just try to define what drama is. Very simply speaking, drama means performance of an action, and this performance is meant for the audience. So this art does have a purpose. I am sure that all of you must have been through Oedipus Rex in your first or second semester. ये कोई आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? You can hear me properly? Okay. If you have read Oedipus Rex, then you are definitely familiar with important features of Greek drama, because Oedipus Rex is one of the few survivors of that great Greek dramatic tradition during the time of their cultural and literary glory. Greek dramatists wrote more than 300 plays, and only 10 to 15 survive today, and Oedipus Rex is one of them. What kind of drama in all its forms and at every era of its artistic journey has definitely been representing ideological orientation of the people, of the society in which it is produced. And we all know that ancient Greeks, I am referring to a time almost 3,000 years back, their religion consisted of a body of myths, and myths are stories, assumptions which
people continue to believe, and they are not necessarily true in the rational sense of the term. As people believe in them, they are considered more than truth. So, Greek plays, their stories were based on those Greek set of beliefs, what we call body of myths. So, this Greek drama had a religious coloring. And Greek plays, they were not performed throughout the year. They were performed on particular religious occasions, on particular times, and most of the time these plays were performed in holy precincts. This points to the religious nature of Greek drama. And the chief of center, the stage center of most of Greek dramas was Dionysus, Greek god of wine and fertility. इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं साथ लेके चलूँगा ताकि उससे आपको फायदा भी हो। You have gone through it that Greek performers, actors, when they performed plays on the stage, they used masks. This is again very important. Why actors use masks? What is the significance of this device? As they involved a lesser number of characters, sometimes not more than 2 or 3, and later on this number increased to 12 or 13. So an actor, a performer, he was coming on the stage in different roles. So they used those particular masks. Then female performers were almost non-existent. Another most important factor that I would like to share is that principle of dignity and rank was one of the major features of Greek drama. You see that their characters belong to royal blood. They were kings and queens, because the most important issue that center of their existence was the element of fate, that metaphysical force which reigned supreme. And when Greek audience, when they were going to watch a theatrical performance, they were more interested in knowing that all of them knew about the tale
related to that body of myths when they were coming to watch theatrical performance of Oedipus Rex. Audience knew well what this tale of Oedipus is, but they were more interested to know that how does Sophocles present this myth. They were more interested to know the creative genius with which he reflects that tale. And those performers, those actors, and as I have said, that they were from royal class. And most of the time, they were the individuals who set the horizon of the humanity. And they were projected as larger than life character. If you have closely read Oedipus Rex, whatever the verdict, whatever finally chorus is suggesting, a moral force, an intellectual force in that play, and you see that gradually the play moves on, chorus is shifting its stance, and a time comes when chorus, Tiresias, everybody, they side with the fate, they side with the will of gods, and all of them abandon Oedipus Rex. That is a fact. But as readers, you continue to glorify, you continue to be mesmerized by the character, by the grandeur of Oedipus Rex. The reason is that you are convinced that Oedipus is a character who has his morality, and for the sake of his moral convictions, he is of the view that he must not kill his father, he must not marry his mother. That is what the will of God was, and that is what the decree of fate was. He runs away from his so-called place of birth, place of origin, to avoid this decree of fate, which was against his personal morality, because he believed in sanctity of relations. What happened, we know. But we are convinced, we are impressed the way he resisted. He is defeated physically, but we continue to glorify Oedipus Rex because he was true to his moral convictions and he was ready to defy that social, public, religious morality for the sake of his own convictions. This is what makes him a larger than life character. अब इसको एक्सप्लेन करके फिर उसी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ कि उसमें जो मास्क है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. To present such characters, the mask which actors used, they were bigger than the normal size of human face, and they also projected their features as bigger than normal humans and inspired awe among the audience regarding the magnitude, the stature of that characters. Then if you just try to, मेरे पास तो उसमें कुछ स्लाइड भी थी लेकिन मैंने मेरा ख्याल है रज़ा लोगों को कहा नहीं, मेरा ख्याल है बाहर से मैं ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है. आप
थिएटर है उसको आप सारे बच्चे आप लैपटॉप पे उसको निकाल के आपने देखना है जो उनका स्ट्रक्चर था। दैट ऑडियंस वर सिटिंग ऑन distant places, on hills, and they were watching that performance which was being staged. And of course they were sitting at distant places. So the mask which actors used and the cavity, the oral cavity of those masks that was particularly built, so that this added to the pitch, to the loudness of the voice, so that their voice would reach even to the distant audience. मैं जब भी सिलेक्शन बोर्ड में बैठा होता हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ, ये PPSC वगैरह में हमें बुलाते रहते हैं, तो मैं अक्सर बच्चों से ये पूछता हूँ कि भाई जो मास्क वो पहनते थे उसके 3 मुझे फंक्शन बताएं। बहुत सारे टीचर्स भी क्लास में यही बताते हैं कि आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भाई वो मास्क यूज़ करते थे, क्योंकि एक आदमी मुख्तलिफ रोल स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहा होता था, तो जिस रोल में उसने आना है उसने वो वैसा मास्क पहन लेना है। अब मैंने उसके अलावा 2-3 बातें इसमें और ऐड की हैं। अब गोजरा के जो हमारे इस कॉलेज के बच्चे हैं, अगर आपसे ये कोई सवाल पूछे तो आपको ये बता पाना चाहिए कि उसके 3 फंक्शंस क्या है। अब इसमें मैंने 3-4 बातें आपके सामने जो 3 आर्ट से रिलेटेड रखी हैं। Another point which is very important, if you are watching that performance on stage or on multimedia or whatever, bloodshed was forbidden. Bloodshed on the stage was forbidden. नहीं दिखाते थे वो कोई किसी को मार रहा। It was reported. It was reported. There must be a very important reason why that bloodshed was not seen on the stage. It was reported by someone. The reason was that image of Dionysus, that was a permanent feature of the Greek stage. उस पर Dionysus जो उनका वो गॉड है, गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, उसका इमेज स्टेज के ऊपर मौजूद होता था फॉर द सैंक्टिटी ऑफ देयर गॉड। तो स्टेज पे ब्लड शेड होता नहीं दिखाते थे, कोई किरदार आके उसके बारे में बात करता था that someone is slaughtered, someone is killed. अब इसके बारे में जो हमने ब्रीफ सी गुफ्तगू की है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करूँगा। One important point I talked about the nature, the feature of Greek drama is existence of metaphysical force. One of the major characters was fate. Fate was that will of gods which must occur. How much glorious a character may be, उसका भी एक reason है that even if will of the gods is ruthless, is cruel, why it must occur? Why it is fine? कोरस भी एडिपस से दूर हो गया, वो सारी सोसाइटी उससे दूर हो गई, उसकी मदर भी उससे दूर हो गई, हर शख्स उससे दूर हो गया जो उसकी अच्छाई, उसके विजडम का कायल था। उसका रीज़न क्या है? जब इंसान जितना भी बड़ा हो, जब इंसान और खुदाओं के दरमियान अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए, then to save the system, it is better that individual should perish. उसका खात्मा हो जाए, क्योंकि बाहर कैफ सिस्टम में आगे बढ़ना है। Whether it is society, it is supernatural forces which reign. आजकल सोसाइटी है जो हमारे ऊपर हमें ओवर पावर करती है, ठीक है। वो आपने देखा है, जिस तरह कहते हैं वेले नालों के लंघ जान की सजा बंदा कला रह जाता है, ठीक है।
कि जब इंडिविजुअल कितना ही वो अजीम क्यों ना हो, तो सिस्टम ने आगे बढ़ना है। इसी वजह से हर फोरम से लोगों ने ग्रेजुअली इडिपस को अबैंडन किया। एंड अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ही ब्रैग्ड ऑफ हिज विजडम, he bragged of his intellect, he bragged of his talent, but quite ironically, everybody had come to know that Jocasta is his mother, and he was the last person to know this. So, how much wise we may claim we are, but we are humans. But we are humans. ये वकील का एक शेर है जो ट्रेजिक हीरो को आप हम डिफाइन भी करते हैं। अदम का शेर है, अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। जो जिसको हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा आला इंसान होता है, ठीक है, लेकिन उसकी शख्सियत में कोई ऐसा पहलू ज़रूर होता है जो उसकी इस कैटास्ट्रॉफी का सबब बनता है। कुछ उंजवीरा माओतियाँ सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये है कि उसके अपना अंदर का फलाह और एनवायरनमेंट का भी उसके हक में ना होना। तो इसमें एक मेटाफिजिकल एलिमेंट बड़ा, दैट वाज डोमिनेटिंग, एंड देन the principle of dignity and rank was there, okay, and characters were larger than life characters. Greek characters were larger than life characters. आप मेरी बात मुझे आप ताहट तो नहीं आप बोलने लगे, क्योंकि हम एक बात जाहिर है कोई बामकसद भी होना चाहिए। अब मैं भी आया हूँ और आपने भी इतना एहतमाम किया हुआ है। That Greek characters, they were larger than life characters. That is what I have talked about Oedipus Rex. And they changed, they transformed horizon of humanity. वो खुद नहीं बदलते थे, बल्कि वो मुआशरे की नज़र को बदलते थे। और अगर if you read between the lines, Sophocles, the way he created, the way he transformed this myth of Oedipus into this dramatic action, and the way he developed that story, this reflects that even Sophocles himself was in love with Oedipus Rex, and he has succeeded in conveying to us this impression, this perception of the dramatist. जो लिखारी होता है किसी दौर में, he gives a vision to the society. वो radical political worker नहीं होता अक्सर कि वो बिल्कुल ही सड़क पे आ जाए और वो उसका ऐलान करे अपनी बगावत का, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर उस इंटेलेक्चुअल मॉरल जो एक रिवॉल्ट है, he provides that epiphany. आज तक अगर ये प्ले सर्वाइव कर रहा है, this is the reason, because whatever the circumstances, whatever the end, character of Oedipus is a glorious character, and even readers of modern time will continue to admire. जो भी था, उसकी जो सोच थी, उसका जो विजन था, वो उसके साथ कमिटेड था। अब अगर हम आगे बढ़ें, यू कम अक्रॉस मिडीवल एज। मिडीवल एज कौन सा है? क्रिश्चियनिटी के बाद फ्रॉम 11th to 14th century, मिडल एजेस इसको आप कहते हैं। आर्ट ऑफ ड्रामा was also there. Again, medieval drama was religious, and they maintained
principle of royalty, dignity and rank in drama, but it lost its human coloring. ग्रीक आर्ट के अंदर एक ह्यूमैनिटी का रंग जरूर था, बट दिस medieval drama, this lost its human coloring because the art of drama, stage, in medieval era, it was used as a tool to propagate teachings of Christ. चर्च ने इस आर्ट को अपने क्रिश्चियनिटी के असूलों को प्रोपेगेट करने के लिए यूज किया। तो जो किरदार इस ऊपर पेश किए जाते थे, दे वर स्टॉक कैरेक्टर्स, दे वर टाइप्स, दे वर पर्सोनिफिकेशंस, दे वर नॉट लिविंग ह्यूमन कैरेक्टर्स। हाउ मच ग्लोरियस Oedipus was. He was adventurous, he was larger than life, but we finally see that he was appallingly human. लेकिन जो medieval art है, इसके अंदर human coloring जो है वो नहीं है। Then the most important age which is known for glory of this art of drama, that was Elizabethan stage. यानी पहला दौर उसकी ग्लोरी का कौन सा है? Greek, almost 3000 years ago. And then the age when drama revived with its glory, that was Elizabethan stage. I am referring to the age of Shakespeare, Marlowe and Thomas Dept. Major paradigm shift took place over here. एक बिल्कुल एक paradigm shift है Elizabethan stage पे. That was introduction of humanism. Introduction of humanism. Whether it was Greek drama, it was medieval art, it was religious, and it was conspicuous for metaphysical element in the form of gods, fate, destiny. As far as Elizabethan drama is concerned, ये Renaissance era है, इसको हम Renaissance era भी कहते हैं, 16th century, 15th, 16th century. तो उसके अब मैं अंदर ज़्यादा Renaissance को उसमें मैं नहीं जा पाऊँगा, इतना टाइम ही नहीं, रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ। Renaissance was the age of glory of man, age of glory of man. For the first time in the history of artistic and cultural presentation of man, man becomes a center of interest. Man becomes center of interest. Before this, whether it was Greek or medieval, he was subject to the will of fate or destiny. ये पहली दफा हम देखते हैं कि जो एलिज़ाबेथन इरा है, जो रेनेसांस इरा में जो ड्रामा प्रेजेंट किया गया, दिस ग्लोरीफाइज ह्यूमन बीइंग, इंसान की ग्लोरी का ये दौर है। मैन बिकम्स सेंटर ऑफ इंटरेस्ट एंड द एक्चुअल ट्रेजिक एक्शन इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ट्रेजिडी। पहले उसकी ट्रेजिडी का जो महवर है, दैट वाज दैट मेटाफिजिकल फोर्स, दैट रियलिटी। अब भी एनवायरनमेंट वो हॉस्टिलिटी का एलिमेंट है, बट ट्रेजिडी springs centrally from within. When you talk of Macbeth, you talk of Hamlet,
and you talk about their tragic flaw, you refer to their inner flaws. That Macbeth was brave, but he was over-ambitious, etc. and so on and so forth. So this was a big shift. That metaphysical element was replaced by humanism. Okay? And so with this replacement, and related to this was that now the religious nature of drama, this was again replaced, and process of secularization of drama took place. एक तो उसमें ह्यूमनिज्म आया और दूसरा एलिमेंट क्या आया, सेकुलराइजेशन हुई. ड्रामा no longer remained religious in its orientation. Shakespeare, he retained the principle of dignity and rank. यानी उसके किरदारों में भी किंग्स, प्रिंसेस और क्वींस की तस्वीरें नुमाया है. And but we need to rationalize it. The age of Shakespeare was, of course, the age of kingship, monarchy, and king was believed to be the shadow of God on earth. तो बादशाह की जो हैसियत थी, ये जो बादशाहत है, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है which is bestowed on a particular individual through divine will. यानी ये अल्लाह ताला की, खुदा की मर्जी है कि वो किसको इक़्तिदार अता करे. And king is believed to be the shadow of God on earth. So he must be benevolent. He must be loving and caring for the people, for his masses. He must work for their welfare. As far as Shakespeare is concerned, in terms of his political convictions and discourse, he was an admirer, a staunch supporter of British monarchy. Shakespeare British monarchy का बड़ा supporter था. उसने वो बादशाहों के किरदार पेश किए. But at the same time, we see that his kings, they retain their dignity till they are true to that benediction, till they are serving their people. But when they turn tyrant, when they lose those traits, those features, and they become tyrant, this results in their catastrophic end. जब वो अपनी उस मैग्नेनिमिटी, उस अपनी सलाहियतों से महरूम हो गए और कोई फला जिसको कहते हैं उनको ओवर पावर करता है, then they end in that tragedy. So Shakespeare presented that good governance is the essence of kingship. किंगशिप का एसेंस क्या है? गुड गवर्नेंस. बादशाह को अपनी रियाया से मोहब्बत करनी चाहिए, उसको अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए, उनके लिए रात दिन उसको उनकी वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए. और अगर वो उससे अलग हुआ, this results in his tragedy. अब इसके साथ एक और जो बहुत बड़ा राइटर है, उसके बारे में बात करना भी इम्पोर्टेंट है. He did not observe the principle of dignity and rank. हाँ वो भी एलिज़ाबेथन, लेकिन उसके किरदारों में यहाँ पे इन्हिराफ है. His characters are not necessarily from royal blood. Dr. Faustus Coffey, he is an ordinary man, and he wants to be as powerful on earth
as Job is in the sky on the basis of his knowledge. For him, knowledge is born. तो मार्लो ने ट्रेजेडी के कंसेप्ट को there is a radical transformation as far as his vision of tragedy is concerned. और अगर आप you must be familiar with this, आप उसका कोई प्ले पढ़ा भी होगा, तो मेरे ख्याल डॉक्टर फास्टस ही आप लोगों ने पढ़ा होगा. For Marlowe, he was inspired by Machiavelli. Renaissance era जब कोई बड़ा intellectual revolt आता है, जो existing parameters होते हैं, what we call status quo, लोग उसके खिलाफ बगावत करते हैं. People in the Renaissance era, they revolted against Christian traditional morality, religion as well. उनका ये ख्याल था कि जो चर्च है और ये पापल सुप्रीमेसी, पोप एंड एक्सेट्रा, they have deliberately kept the people ignorant, and this religion for Marlowe was just a toy. ये लोगों को शायद ignorant रखने के लिए ये restrictions हैं. And he was actually inspired by or overwhelmed by the assumption of unbounded power of human ambition. क्योंकि रेनेसांस के राह में लोगों ने बड़े बड़े काम किए. रेनेसांस से पहले जो समंदर थे उनमें जो नेविगेशन होती थी, that was confined only to coastal areas. दिन में ही मतलब आगे जाते थे और शाम को फिर वो वापस भी आ जाते थे. मैरिनर कंपास जब इन्वेंट हुआ, जब डिस्कवर हुआ, उससे then people voyaged into the deep sea, and then Columbus discovered a new continent, what we call America. और बेशुमार geographical discoveries हुई, scientific inventions were there, which shook the very foundations of traditional beliefs, centuries held beliefs. मार्लो का जो concept है, tragedy जिस पे based है, he is of the view कि रॉयल ब्लड होना कोई क्वालिटी नहीं है. The greatest quality, the greatest virtue is human ambition. इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी ambition है. And men are born with inherent ambitions. इंसान ख्वाहिशात के साथ पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, और ख्वाहिश जितनी बड़ी है, इंसान इतना ही बड़ा है. और उसका एक और जो उसका जो क्लेम था, that the magnitude of your ambition, आप जितनी बड़ी ambition आपकी है, you have inherent ability to pursue that ambition. जितनी बड़ी ख्वाहिश आपके अंदर पल रही है, इतनी ही आपके अंदर inherent पावर भी है कि आप उस ख्वाहिश की तकमील कर जाए. तो उसके लिए फास्टस बड़ा आदमी है, क्योंकि वो उसका क्लेम क्या है, जो भी दुनिया में मैं पूरी दुनिया में रूल करूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई पावर. इसी तरह जी ऑफ माल्टा है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंट्रोल ऑफ वेल्थ. ही वांट्स टू बी पावरफुल एवरीवेयर. He is ready to sacrifice all human relations. Marlowe did not distinguish between good and bad ambitions. हम जब रिवायती morality की बात करते हैं, तो हम ambitions को divide करते हैं. ये अच्छी है, ये जायज़ है, खैर हम believers भी, भाई ये काम सही है, और ये ambition मेरी नाजायज़ है. Marlowe कह रहा था कि ambition is greatest human virtue. Ambition अच्छी या बुरी नहीं होती, ambition हमेशा अच्छी होती है. For him ambition is greatest human virtue. और अजीम वो है, one who goes to every extent, one who goes down fighting till bitter end for materialization of his dream. कि फास्टस ने सारी जिंदगी जो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ताकत गेन करूँ, all things that move between white poles
shall be at my command. अब मैंने ये बड़ा सा हो गया, ये पढ़ाया भी, इसको शायद 20 साल पहले पढ़ाया होगा, और जब पढ़ा था मास्टर्स में 86 में। एक और बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, जो आपके सीनियर टीचर भी बैठी, जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि मैं फास्टस पढ़ रहा हूँ, मुझे फास्टस की 100 लाइन याद है, और इतनी ही लाइन्स मुझे याद तब थी, अब उसमें से कुछ ड्रॉप भी हो गई। अब क्या है, अब हमारे बच्चों को एक लाइन भी याद नहीं। ठीक है, ये 99% ऐसा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अदब को दिल से ही आपको अदब के साथ लगाओ तो आपकी गुफ्तगू में, आपके कन्वर्सेशन में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और यू कैन नॉट एन्जॉय, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट relish। अब मैं वी कह रहा हूँ, मैं भाई आपको मैं इल्ज़ाम थोड़ा देता हूँ कि यू कैन नॉट डू दिस। वी कैन नॉट relish, वी कैन नॉट एन्जॉय लिटरेचर unless we read text with love and care, very keen। ये खुलासे पढ़ के तो हम पास कर ही लेते हैं, और हम सारे अब पेपर नंबर भी हमें लगाते हैं, ठीक है भाई, ये सेमेस्टर सिस्टम के बहुत सारे हमारे ये भी इश्यूज़ हैं, लेकिन देखे हम बच्चों को पास भी करते हैं। तो जब हमने किया तो तब सेकेंड ईयर MA में ले लेना एनुअल सिस्टम का तो बहुत बड़ा मार्का होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसे मैंने डिपार्टमेंट से किया, तो ये ऑलमोस्ट कोई 40+ की क्लास थी हमारी, उसमें से 5 लोगों की सेकेंड ईयर थी, मैं भी में शामिल था जो 5 थे, और 8 लोग जो पास किए तो थर्ड में पास हुए, और उसके बाद जब वो लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो सारी क्लास ही हमारे ऑल वर सिलेक्टेड एज लेक्चरर्स। तो अब हमारा जो स्टार्ट है वो हम 80s लेते हैं, वी मूव अहेड टू 90 and 99 and 95। तो इसको भी ज़ाहिर है देखना चाहिए बात के। तो आपको आप टेक्स्ट को पढ़ा करें, उसको relish करें, और लाइन्स को आप एब्जॉर्ब करें। You must remember them by heart. This is the true spirit of a true student of literature. आपको लाइनें याद, बेशुमार याद, आपको अशआर याद, और हम तो मल्टीलिंगुअल हैं। और मैंने आपके सामने मुनीर न्याजी का शेर भी सुनाया, कुछ भी रामा औखियाँ सब ध्यान करें, कुछ गल में हमदा तौब भी सी, ये दुनिया आ गई, कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक है। इससे बेहतरीन डेफिनेशन ट्रेजिक हीरो की कोई और मुझे आज तक नहीं। आप किताबें पढ़ते नहीं, आप उसकी डेफिनेशन तलाश करके। अब हम दोबारा अपने उसी पॉइंट पे आ गए, मार्लो की हम बात करें तो देयर वाज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट विजन ऑफ ट्रेजिडी। उसने एम्बिशन को भी दुनिया बना। देन वी सी दैट हिज heroes finally they meet that catastrophic end, because Marlowe intellectually himself, under the influence of Machiavelli, he was also overpowered by the spirit of the age in which he was living, और उसकी जो अपनी atheistic उसके friends थे, उसके heroes की tragedy कैसे बनती है, that they do not acknowledge, they do not realize their human limitations। वो अपनी ambitions में इतने involved नजर आते हैं कि वो अपनी human limitations का इदराक नहीं कर पाते, और ट्रेजेडी का सबब यही चीज़ बनती है। तो इस रेनेसांस एरा में जो बड़ी यानी जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, one is humanism, that man becomes for the first time center of interest, और दूसरा सेकुलराइजेशन ऑफ ड्रामा। तीसरी बात है डिग्निटी एंड रैंक, उसमें शेक्सपियर ने उसको फॉलो किया, मार्लो ने उसको फॉलो नहीं किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिग्निटी और रैंक जो है इसको डेंट पड़ा। देन यू सी जैकोबियन ड्रामा इन 17th century, देयर वाज डिक्लाइन, उसमें बेन जॉनसन है, शेरिडन है,
They tried their best to revive the glory, but their sporadic attempts, they could not achieve this. There was a decline in the art of drama. Next then, when we use the term modern drama, और जो एलिज़ाबेथन स्टेज है उसके बारे में, जिस तरह मैंने ग्रीक के बारे में बताया, एलिज़ाबेथन स्टेज जो है, इट वॉज म्यूट स्टेज। वो जो चबूतरा ऑफिस के ऊपर परफॉर्म करते थे, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, बस फ्लैट पॉइंट फॉर परफॉर्मेंस। जो एक्शन था, दैट मूव्ड अहेड थ्रू एक्शंस एंड डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर्स। एक सवाल भी बाद आप लोग पूछते हैं, दैट शेक्सपियरियन स्टेज और एलिज़ाबेथन स्टेज इज द स्टेज ऑफ इमेजिनेशन। ये ऐसा तो टेक्निकल कहता है, स्टेज जो है वो तो इमेजिनेशन था उसमें, तो उसको हम रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? जिस तरह आपने मैकबेथ अगर पढ़ा है, तो लेडी मैकबेथ कहती है, इट इज बिविचिंग टाइम ऑफ नाइट, इट इज बिविचिंग टाइम ऑफ नाइट। जो भी कुछ करना चाहती है रात का वक्त, बट इफ द प्ले इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, और जो उनका वो स्ट्रक्चर था ऊपर से वो इट वाज हाफ ओपन, ठीक है, एंड डे लाइट इज फॉलिंग ऑन द स्टेज, तो फिर स्टेज पे तो रात ही नजर आ रही, ठीक है, और लेडी मैकबेथ क्या करेगी? बिटवीन टाइम ऑफ नाइट। तो इट इज अप टू द ऑडियंस टू इमेजिन दैट द टाइम ऑफ एक्शन इज एक्चुअली नाइट। तो स्टेज जो है वो आपको कोई उस पर गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करता था, आपने इमेजिन करना होता था कि ये टाइम ऑफ एक्शन जो है उसमें एनवायरनमेंट कैसा है। आगे जब हम मॉडर्न की तरफ आते हैं, वी से दैट मॉडर्न ड्रामा इज रियलिस्टिक ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा इज रियलिस्टिक ड्रामा। अब रियलिज्म क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लें। We try to define realistic art, that characters are lifelike, stage setting is elaborate, they speak real human speech, and they are ordinary human beings. इसको हम कहते हैं रियलिज्म। इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड भी कर ली। The historical trajectory which I am trying to develop, that in Greek art, metaphysical force, जो जिसकी physical existence नहीं थी, that reigned supreme, okay? And then in medieval time we see again destiny. Then in Renaissance era we see that is almost vanishing. लेकिन शेक्सपियर के ड्रामा में भी डेस्टिनी का रोल, फॉर्चून का तस्करा मौजूद है। तो रियलिज्म को जब हम वी ट्राई टू डिफाइन इट इन कैटेगोरिकल टर्म्स, बात समझ आए, तो आप उस पर क्या कहेंगे? दैट रियलिस्टिक आर्ट इज वेयर देयर इज मेटाफिजिकल जीरो। जिस आर्ट के अंदर इंसान ही हो, कोई मेटाफिजिकल फोर्सेस ना हो, फेट, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, सुपरनैचुरल एलिमेंट, ये चीज़ें आपको नजर ना आए। और फिर इंसान कैसा? मैन एन इंस्टिंक्टिव बीइंग, मैन विद क्रेविंग्स, विद ऑर्डिनरी कोर्स डिजायर्स, wandering in search of materialization of his desires, एक आम आदमी। And a man who is product of his environment and heredity, and when you see him doing something, you can easily find clear motives behind his actions. ये ऐसा कर रहा है, तो इसके पीछे ये रीजन है। जब उसके पीछे मेटाफिजिकल फोर्स और वो एलिमेंट नहीं होगा, वो एक आम सा इंसान होगा, who is environment of his product, who is the son of the soil, who is environment of particular geography,
ठीक है, वो एक आम आदमी है, उसका एक पास्ट है, उसकी एक फैमिली बैकग्राउंड है, उसका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसका एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। वो डियर डिपार्टेड आपने कहानी वानी अगर पढ़ी होगी FSC लेवल पे, तो वो दो बहनें इतनी मीन एक्टिविटीज क्यों करती हैं? Because they are compelled by their economic conditions to behave in that debased manner. Otherwise वो किसी ने, बाप तो मर गया, जो मरा नहीं था, तो एक ने स्लीपर उठा के अपने पास रख लिए, दूसरी ने उसकी वाल को प्लाट उठा के पहले रख ली, कहा कि ये अब्बा जान ने मेरी बेटी को दे दी थी, ये फलां ने उसको गिफ्ट कर दिया था, और वो ड्रायर उठा के रख लिया। Why they were doing this? बड़ी अजीब सी बात लगती है कि अब्बा मरा पड़ा है और बेटियां जो हैं वो छोटे मोटे जो सामान है उसका वो बांटने में या कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं झूठे, ये मेरी बेटी को दे के गए थे, ये मेरे मियाँ को कह के गए थे, ठीक है। Why they were doing this? Because they were compelled by their economic conditions. तो वो ऐसा कर रहे थे। जो रियलिस्टिक, अब ये जो मैंने उस पर एनवायरमेंट की बात की या मैंने हेरिडिटी की बात की, तो ये रियलिज्म की एक और एक ज़्यादा एक क्रूड फॉर्म है जिसे हम नेचुरलिज्म कहते हैं, जिसे हम नेचुरलिज्म कहते हैं। तो रियलिज्म की ही एक स्टेज है, फिर आगे आएगी एक एक्सप्रेशनिज्म भी है। अब इसमें बड़ा एक नाम आपके सामने आता है, इब्सन, दैट नॉर्वेजियन प्लेराइट, दैट ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा। तो अब उसके भाई फीचर्स क्या हैं? तो रियलिस्टिक ड्रामा मीन्स वेयर कैरेक्टर्स आर human beings of flesh and blood, आम से लोग, men of flesh and blood. They are not stock characters. They are not types. That characters are men of flesh and blood. They are not stock characters. They are living human beings where their ordinary desires and cravings, and they are doing everything to achieve it. They are subject to their, जहाँ पे लोग बड़े बड़े हैं, ठीक है, उनकी हेरिडिटी क्या है। जिस तरह आपने इसमें नॉवेल्स के अंदर आप ये बड़ा हार्डी का मशहूर नावल है, तो हमारे कोर्स में भी कहीं रिटर्न ऑफ द नेटिव, अगर आपने वो अपने सिलेबस में भी रहा है, तो उसमें वो दैट इज नॉवल ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग कैरेक्टर इन दैट नॉवल। ये 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड जो ड्रामा है, दिस इज व्हाट वी कॉल रियलिस्टिक ड्रामा, दैट actors, characters, the actions they perform, you can easily analyze them psychologically. This is drama of ideas. This deals with social issues, psychological issues of the society. उसमें गिब्सन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रिचर्डसन का जो इनसे भी पहले है, जिसने ये इसका आगाज़ किया। Then we see उसमें बर्नार्ड शॉ का बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ऐसे कैरेक्टर्स, उसमें जो स्टेज है, जो रोल ऑफ स्टेज इज, एंड व्हाट आई कॉल दैट रियलिस्टिक स्टेज मीन्स, रियलिस्टिक ड्रामा मीन्स एवरीथिंग इज अ स्टेजेबल रियलिटी। वो रियलिटी ही नहीं है जो स्टेजेबल नहीं है। यू कैन स्टेज एवरीथिंग, दिस इज रियलिटी। तो T.S. Eliot का भी एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का भी है। आर्ट का परतव जरूर हमें कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। उसने कहा हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। इसमें इसकी जो सोलिलिक्यूज हैं, इनको हम स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ये
स्ट्रिंगबर्ग का एक बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ नेचुरलिस्टिक स्टेज, जो रियलिज्म की ही जिसको हम बात करें. ही इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी. इसको ज़्यादा फोकस किया. हिज कैरेक्टर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट एंड देयर हेरिडिटी. मिस जूली उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसका वर्क है. ऐसी चीज़ों को जाके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. इससे अगर हम जब आगे बढ़ेंगे, इब्सन में आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा प्ले आपके इधर पढ़ाया जाता है? हेडा गैबलर. यू कैन सी सो मैनी हेडा गैबलर्स अराउंड यू एंड सो मैनी यस. ओके, तो वो आपको लव बॉल और इस तरह के आपको सारे नज़र आते हैं. बंदा देखता है कि भाई ये जो ऐसा जो खातून कर रही है, ऐसी खवातीन तो कहीं हमारे इर्द गिर्द भी हैं. और क्लास पहले में एक दूसरे के नाम रखे हुए होते हैं. वो लड़कियों ने लड़कों को बनाया हुआ होगा, ये पुराना किरदार है. वाइज ने लड़कियों को असाइन किए होते हैं मुख्तलिफ रोल्स. तो ये यू कैन डिसर्न, यू कैन एनालाइज दैट साइकी. इब्सन की और रियलिस्ट की बड़ी एक सिंपल फिलोसफी है दैट वी नीड essential lives to exist. इससे बड़ा भी कोई एक ज़बरदस्त सच्चाई है कि इंसान को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ झूठ की ज़रूरत है, कुछ इल्यूशंस की ज़रूरत होती है, कुछ अजम्पशंस की ज़रूरत होती है. और हमें ऐसे रिफॉर्मिस्ट नहीं चाहिए जो दूसरों जो लोगों को एक्सपोज करते फिरते हैं. ठीक है, जिस तरह को जाल मार का उसमें कोई कैरेक्टर है. इसका जो दूसरा प्ले है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो कहता है मैं तो इस खानदान का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं तो इसकी सच्चाई बता के ही दम दूंगा. दे वर सो हैप्पी, दे हैव देयर चाइल्ड एंड दे वर एंजॉइंग लाइफ, बट ही फाइनली ब्रिंग्स टू लाइट द अफेयर ऑफ द लेडी विच रिजल्टेड इन ट्रेजिक destruction of the whole family. ये हमारे रिलीजन में भी है. आप पैगंबर इस्लाम की पूरी हिस्ट्री पढ़िए, वो हालात के मुताबिक उन्होंने बेशुमार फैसले किए. ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि जो सच आपको मिल गया है उसको हर जगह पे बोलना है. जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खामोश भी रहना चाहिए. हमारा रिस्पॉन्स जो है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टिंक्टिव. ये मुझे किसी का कोई गलत बात कोई मिल गई तो मैं तो इसको दुनिया में फैला के ही दम दूंगा, यही सच्चाई है. दैट इज़ नॉट ट्रूथफुलनेस, दैट इज़ एक्चुअली दैट इंस्टिंक्ट विच हैज़ फोर्स्ड यू टू क्रिएट दिस ह्यूमर, दिस chaos. उससे फिर आगे सोसाइटी की आपने क्या खिदमत की, देन consequences आते हैं. डॉल्स हाउस में आप देखते हैं that he is a modern writer. He is also pioneer of this feminist movement. Nora, when she leaves her home, her coming out of that house of her husband is a big indication that she is not ready to compromise. She is, if it is hurtful for her, then she is ready to break away with this bond. वो हर हाल में उसके साथ जुड़ा रहना नहीं चाहती. अब इससे थोड़ा सा और आगे मैं अगर आपको ले जाऊँ, you must have read American drama. डेथ ऑफ अ सेल्समैन पढ़ा है या क्रूसिबल पढ़ा है? ओके, आर्थर मिलर को आपने पढ़ा है? आर्थर मिलर बहुत ज़बरदस्त ड्रामेटिस्ट है, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है. आर्थर मिलर अमेरिकन राइटर है. उसने जब डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखा, ये भी चीज़ें साथ हमारी डिस्कशन का हिस्सा ही है. डेथ ऑफ अ सेल्समैन में क्या क्या आप देखते हैं? दैट विली लोमैन, ही इज एन ऑर्डिनरी सेल्समैन. नाउ ही इज पास्ट 60, he is losing his eyesight
and he comes to his boss and talks of his previous services, उसको ये वास्ता भी देता है कि मैंने आपके बाप ने मेरे से कंसल्ट किया था कि मैं बेटे का क्या नाम रखूं। ये हमारे कल्चर में बड़ी ये भी एक एजाज़ होता है कि देखिए कोई आपके घर कोई मुलाजमा अगर काम नहीं करती है तो वो कहती है कि भाई तेरा नाम फिर मैं रखिए ऐसे, तेरी अम्मा तेरे अब्बा ने मेरे को पूछे ऐसे। वो बड़ी एक लज होती है हमारे पंजाबी में, बड़ी लज है भाई, मेरा नाम जड़ी ना फलानी मासी सीधा नहीं उठा कम कर दी, वो मतलब उसको एक बड़ा उसका क्लेम होता है, ठीक है। तो वो आके उसको बताता है कि आई हैव डन दिस, आई हैव गिवन नेम टू दिस कंपनी इन फार ऑफ प्लेसेस ऑफ अमेरिका, आई हैव ट्रेवल्ड सो लॉन्ग। He is actually referring to capitalism which is now past, where there was a value system. Capitalism एक अच्छा निज़ाम है। If capitalism is accompanied by humanism, अगर सरमायादार अच्छा इंसान भी हो, अगर वो इस बात का एहसास करे that the finished product which I am going to sell in market, I invested 200 rupees on this product, and now I am going to sell it in market in 1000 rupees. This added value of 800. In this added value, skilled workers have also their major contribution. So the profit which I am getting, I must share part of this profit with these skilled workers. फिर कैपिटलिज्म दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। वो बेचारा वो पुरानी बातें करता है 35-40 साल पहले की, शू शाइन की बात करता है, ड्रेस की बात करता है, टाई की बात करता है, बेटों को ग्लोरीफाई करता है। तो उसका मालिक कहता है कि वी हैव नो प्लेस ओवर हेयर फॉर यू, इफ़ यू वांट ट्रैवल यू आर नो लॉन्गर अ सेल्समैन, और कल हमारे सैंपल भी वापस कर जाना, तुम्हारा कम and return samples of the company, you can no longer represent us. Howard जो है, he is the product of capitalism, this ruthless capitalism, which is sheer exploitation. He is of the view that Willy Loman is paid for what he has done. Now he is an old man, so he must be discarded. In this maddening, competitive, capitalistic culture, there is no room for Willy Loman. This is capitalism minus conscience. This is capitalism minus conscience, minus human value, minus humanism. Willy Loman की wife Linda बार यही कहती है that attention must be paid to him. Attention must be paid to him. He must not die like a dog. He is a human being. वो इंसान है, उसको एक डॉग की तरह मरने ना दिया जाए। Now while he is an old man, past 60, he served his society. He gave his youth, his blood, his energy, in whatever capacity he could serve. Now this is the turn of society to pay him back. Old है, तो society की अब जिम्मेदारी है कि वो उसका ख्याल रखे। But he is placed in that wrong environment where capitalism is being run minus humanism. उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, उसमें सिर्फ प्रॉफिट है। अब जो प्लेज उसने लिखे, दूसरा उसका प्ले आपने क्रूसिबल पढ़ा है, आप लोगों उसमें कौन सा प्ले है? क्रूसिबल। वो भी उसका बहुत ज़बरदस्त प्ले, उसका एक बैकग्राउंड है। जब उसने डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखा, और एक अमेरिका में बड़ा एक दौर था जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रशिया और अमेरिका में बड़ा बाइपोलर एक कन्फ्लिक्ट था। तो उसने लोगों ने कहा कि ये आर्थर मिलर जो है, आर्थर मिलर जो है ये तो सोशलिस्ट हो गया, ठीक है। इसने डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखी, अमेरिकन कैपिटलिज्म की तौहीन की। तो अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी बनी, उसके सामने आकर मिलर को बुलाया और भी लोगों को बुलाया, उसे कहा दैट यू नीड टू टेक अ फ्रेश ओथ ऑफ लॉयल्टी विद अमेरिका बिकॉज यू हैव रिटन दैट प्ले
and that there is a challenge, a critique of American capitalistic culture. वो एक बड़ा जेन्युइन राइटर था, तो उसने कहा मेरा तो अमेरिका के साथ वफादारी जो है उसको कोई शक है नहीं, और मैंने जो प्ले लिखा है, आई हैव सर्व्ड कैपिटलिज्म, आई हैव आइडेंटिफाइड ills of the system, और मेरा पर्पस क्या है, that conscience must be brought back into the system. So I am writing in favor of capitalism. I am not writing in favor of communism. I won't take this fresh oath of loyalty with America. And he was jailed, he was imprisoned. फिर उसका इतना स्टेचर था कि बाद में रिकॉग्नाइज किया गया, फिर उसको उन्हें उसकी सज़ा को ख़त्म की। ये जो क्रूसिबल है, ये फिर उस सिनारियो में उसने वो जो विच हंटिंग अमेरिका में हो रही थी, उसने फिर अपनी ही एक सोसाइटी का वो सेलम की सोसाइटी को दिखाया है, जिसमें वो प्रोपेगेंडा है, एक वैनिटी है, एक झूठ है समाजी, जो सारी सोसाइटी को जिसने अपनी ग्रिप में ले रखा है। अब जिस बात की तरफ मैं आ रहा था, तो उसके आर्ट की जो मैंने लफ्ज़ एक्सप्रेशनिस्टिक स्टेज शो किया, क्योंकि अब ग्रेजुएट स्टेज आगे बढ़ रहा है। The stage which Arthur Miller and Eugene O'Neill, another American writer, जिसका कोई प्ले यकीनन तो आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रा, बहुत उसका ये one of the most powerful plays, Morning Becomes Electra, a wonderful play indeed. दोनों Death of a Salesman है, Crucible है, and then his Morning Becomes Electra. In both these playwrights, the stage they use, the stage where there is presentation, this is expressionistic stage. ये भी realism की एक बहुत advanced stage है। हमने naturalism का लफ्ज़ यूज़ किया, और फिर अब मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ expressionism. Expressionism means inner self is externalized, is objectified, is seen on the stage. Inner self वो है जो स्टेजेबल बना है। There is elaborate use of lights, of colors, of sounds. If the mood is dismal, it will be accompanied by dismal songs and music. If it is marked for joy, music will be the same. Lights आपको नजर आएंगी, colors आपको नजर आएंगी. They reflect various moods, inner moods of the character. तो यानी जो realistic drama है, उसको और ज़्यादा उन्होंने stage को, they have made their stage more elaborate, more contributing. ये पीछे आप जाएं, whether it was Greek stage, it was Elizabethan stage, वो stage mute थे comparative. Stage के ऊपर there was nothing on the stage other than performance and dialogue of the characters. अब जब modern जो realistic drama है, which start from Ibsen and then we have move ahead to this expressionistic American drama, the stage is becoming increasingly elaborate. तो यानी एक वो dialogue और action से ज़्यादा stage जो है वो अपना role play कर रहा है। और आगे थोड़ा सा इसको भी मैं इसका जिक्र करता चलूँ। आपने एब्सर्ड थिएटर ऑफ द एब्सर्ड भी आपने पढ़ा है, ठीक है? तो कोई भी जब आप किसी भी आर्टिस्टिक लिटरेरी मूवमेंट एज को जब आप डिफाइन करते हैं, यू मस्ट लुक इनटू द सोशो इडियोलॉजिकल कल्चरल सिनारियो ऑफ द एज। ये पोस्ट वॉर इरा है, where there is death wish, where there is alienation, there is non-existence of hope, meaninglessness of life is there. अब ये यहाँ पे बड़ी इसमें again there is a big shift. हमने पीछे देखा है that man, रिवायती तौर पर हम कहते हैं कि man is the author of language. Man is the author of language. ज़बान और ज़बान का एक बड़ा एक उसकी एक biblical, उसकी एक स्क्रप्चरल एक है। हम अपने मजहबी देखें तो भाई खुदा ने कहा कि एम्ब्रेस किया, जब राइट में कहा कि पढ़ो, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता, और फिर वो चीज़ें सिखाई,
तो ज़बान जो है वो मैन इज़ द आथर, आप उससे आप यानी इवन आप एडम से आप शुरू करें कि मैन इज़ द आथर ऑफ लैंग्वेज, मैन इज़ द आथर ऑफ लैंग्वेज विच एट इट्स बिब्लिकल डायमेंशन। तो थ्रू आउट लैंग्वेज का रोल एक बड़ा प्रोमोटिव रहा है, आर्ट ऑफ ड्रामा में ग्रीक था, कोई भी था। अब ये जो एब्सर्डिस्ट थिएटर है, इसमें लैंग्वेज का एक रोल उसने डिफरेंट दिखाया, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम लैंग्वेज डिसीव्स अस, लैंग्वेज डिसीव्स अस, वी ट्राई टू हाइड रियलिटी विच इज अगली। एग्जिस्टेंस क्या है? एब्सर्ड थिएटर में आपने चाहे वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ा हो, केयर टेकर पढ़ा हो, तो उसमें क्या है वो लाइफ इज अगली, लाइफ इज एब्सर्ड। They have no identity, they have no concept of time, they have no concept of space. They are wandering in search of something and they find nothing. And most of the time you see dots with two-syllabic, three-syllabic, monosyllabic speeches. Why? Because they are incoherent. They do not find appropriate words to represent what they think, or otherwise that they are thinking nothing and they have nothing to represent, they have nothing to reflect through language. तो लैंग्वेज को फिर वो एक ऐसे जिस तरह हम लिबास पहनते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ बोलते हैं, उस अगलीनेस को, उस केओस को, उसको छुपाने के लिए, यानी बदसूरती है ज़िंदगी, उसको कुछ मीनिंग्स बनाने के लिए एक एस्केप की शक्ल है। उस मीडियम को ख़त्म करने के लिए हमने ज़बान का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लिबास पहन लेते हैं, अदरवाइज दिस लाइफ इज क्वाइट अगली। इसमें भी ज़ाहिर है वो स्टेज के ऊपर वो चीज़ों को इस अंदाज में उन्होंने दिखाया है। फिर लोगों ने इस पर बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन जो वेटिंग फॉर गॉडो जब ये प्रेजेंट हुआ तो 10 लाख लोगों ने, जब फर्स्ट टाइम ये आया, 10 लाख लोगों ने इसको आकर देखा, और वो दास्तान इस तरह है, तो उसमें कैरेक्टर्स हैं, ये एक सिलसिला है जिसमें हमने आई हैव ट्राइड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, उसके फीचर्स क्या थे, उसका स्टेज का क्या रोल रहा है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक। जाहिर है उसमें आपकी लिमिटेशन भी है, और मैं भी जाहिर है उसमें कितनी बातें आप एक वक्त में कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह कभी। Any question you would like to ask? Someone asked, if someone asks you wants to ask, he will be given the mic and he may ask question. कोई सवाल जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, जो स्पीकर होता है ना उसको एनकरेज करने के लिए, ठीक है। सवाल ना पूछे तो मैं तो समझता हूँ कि आपको मेरी बात की समझ कोई नहीं आई, यानी मेरे में प्रॉब्लम था, आप में नहीं है। जरा थोड़ा आप आगे आएंगे ना, आपकी आवाज़ जरा मुझे। Can we change? Our fate with the reference of Oedipus. Can we change our age? Okay, okay. देखिए फेट जो है वो अब भी है, ठीक है। आप we are living in this modern age, okay. अगर आपने मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना भी है, अगर आप जब मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आप पढ़ेंगे, उसके अंदर वो जो मैनन फैमिली है उसकी भी एक फेट नजर आएगी, और वो फेट क्या है, वो साइकी है उनकी, ठीक है। अब इस जदीद दौर में जो हमारी साइकी है, दैट इज आवर फेट, वो भी इतनी ही ताकतवर है कि आप यू आर द प्रोडक्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, आपकी जो तरबियत हुई, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका पास्ट, आपका रिलीजन, आपकी क्लाइमेट, आपकी ज्योग्राफी, योर इकोनॉमिक कंडीशंस, योर कल्चरल सिनारियो, ये सारी चीज़ें जो हैं
ये मिल के हमारी शख्सियत बना देते हैं, और जिसको हम साइकी कहते हैं, तो वो एक फेट का दर्जा रखती है। वी कांट गो अगेंस्ट, अगर मैं आपके सवाल को सही समझ सका जो आप कहना चाह रहे हैं। बाकी हम एमुलेट कर सकते हैं। एडिपस रेक्स जो है वो चाहे 3000 साल पुराना वो कोई इंसान था, वो किंग था, बट द क्वालिटीज विच ही डिस्प्लेड, जो उसकी ट्रूथफुलनेस है, जो उसकी सिंसेरिटी है, जो उसकी डिवोशन है, देखिए वो तो फेट का जो भी था, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड दैट हॉरिबल फेट। मैं अपनी माँ के साथ शादी नहीं कर सकता, मैं अपने बाप को नहीं मार सकता, तो ही वॉज अपॉलिंगली ह्यूमन। उसके जो डिग्निफाइड डिमीनर है, हम उसको आज भी हमें ऐसे किरदार भी मिलते हैं, तो हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, वो किरदार आज तक वो ड्रामा इसी लिए हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा प्लेज लिखे थे, और वो प्लेज अब हमें नहीं पता कि वो किधर गए। 10-12 प्लेज जो आज तक ग्रीक के जिंदा हैं, दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ देयर यूनिवर्सैलिटी। और जो हमारा अपना एक हमारा हम मुस्लिम्स भी हैं, इस्लाम में तो है कि इंसान, मैन हिमसेल्फ इज़ द चूज़र। क्रिश्चियनिटी भी यही है भाई, इंसान अपने, मैंने जितना कुरान को पढ़ा है तो अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम कि इंसान घाटे में है, ज़ालिम इंसान है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वो लोग जो अच्छे काम करते हैं और हक़ के साथ रहते हैं, सब्र के साथ रहते हैं, बाकी जो ऐसा नहीं करते वो घाटे में। और खुदा जालिम नहीं है, वो मेहरबान भी है, वो रब्बुल आलमीन है। ये फेट के जो कलूती तस्वुर हैं, उनसे हमें बाहर निकलना चाहिए। और इंसान की अजमत ये है दैट वन शुड डू वंस बेस्ट। एक है एफर्ट एंड रेजिग्नेशन, हमारा काम है अच्छा करना, नताइज हमारे बस में नहीं है। और कुरान क्या कहता है, जो गरीब है वो ये न समझे कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया तो वो मुझे पसंद नहीं है, वो भी आजमाइश है। और जिसको मैंने बहुत दे दिया है वो अकड़ता न फिरे कि मैं तो बहुत खुदा का महबूब हूँ, वो भी आजमाइश है। तो इंसान को एक्ट करना चाहिए अपने ज़मीर के साथ, एंड देन लीव द रिजल्ट्स, उस पर हम कादिर नहीं। और ये फेट का जो कंसेप्ट है ये हज़ारों साल से चलता आ रहा है, इसकी कोई डेफिनेशन आज तक कि इंसान चॉइस कितना उसके पास है, डिटर्मिनिज्म क्या है, ये डिबेट चलता रहेगा। यस हाँ बेटा, ज़ाहिर उसकी सिग्निफिकेंस तो डेफिनेटली है कि जब आपने देखते हैं, ठीक है, उससे इट गिव्स यू, इट एनोबल्स, इट प्योरीफाइज योरसेल्फ। आप उससे एक मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है, आपके अपने अंदर बहुत सारी सवालात होते हैं, तो जब आप उसको देखते हैं तो एक कैथोटिक रोल ऑफ आर्ट जो है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। वो हमेशा से ज़ाहिर है वो आपको एजुकेट भी करता है इन एस्थेटिक सेंस, इन मॉरल सेंस। वो रोल ऑफ कैथोसिस इज देयर, एंड और आर्ट है ही कैथोटिक। Sir, how do you compare the tradition of English drama and our tradition? And don't you think that our drama has been lined with the Faisalabad drama? जो हमारे यहाँ जो ड्रामेटिक आर्ट है उसमें ज़ाहिर है बड़ा कुछ लोगों का इस तरह धोखा उसमें है। तो लेफ्टिस्ट लीनिंग्स में हमारे यहाँ ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको वेस्टर्न जो, क्योंकि जब हम ड्रामा पे बात करते हैं तो इसकी जो हिस्ट्री को आप देखें वो 4-3 हज़ार साल से ज़्यादा उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, और वेस्टर्न ही उसकी ओरिएंटेशन है। जब हम ग्रीक के कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन था दैट वाज इन द आर्ट ऑफ ड्रामा। ज़ाहिर है वो इतना उसने लंबा सफ़र किया। तो हमारे जो ड्रामेटिक आर्ट है, एंड वी हैव सो मेनी अदर इनोवेशंस, अभी हमारी सोसाइटी में वी आर नॉट सो ओपन अप टू ऑल दिस, तो वी आर मूविंग अहेड। तो नए जो ड्रामेटिस्ट हैं वो लोग ज़ाहिर है उस पर वो अपना काम कर भी रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो द लिटरेचर दैट वी नीड टुडे
दैट इज़ प्रपोजिव लिटरेचर, कि हमें अदब वो चाहिए जो हमारे जो इश्यूज़ को एड्रेस भी करे, ठीक है, जो वॉइसलेस को आवाज़ भी दे, जो आम आदमी की बात करे, कि वो रियलिटी और जो हमारे मसाइल हैं उनको डील भी करे। तो इस डायरेक्शन में हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल लैंडस्केप में देखें तो नावल जो है उसमें बाकी तमाम जानरा को डोमिनेट कर चुका है। नावल इजीली एक्सेसिबल है, बाजार से आपको मिल गया, घर बैठ के आपने पढ़ लिया, ठीक है, और नावल का स्पेस इतना ज़्यादा है कि एक दास्तान में आप कई दास्तानें चला सकते हैं। तो ड्रामा की ग्रोथ में ये रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आपको उसके लिए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, आपको स्टेट पेट्रोनेज चाहिए। हमारे यहाँ आर्ट के लिए कहीं है नहीं, तो लोग इंडिविजुअल लेवल पे कितना उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप एलिज़ाबेथन अगर आप स्टेज पे जाएं तो जितना वो रॉयल पैट्रोनेज था, और बाद में ज़ाहिर है सोसाइटीज़ में लोग बड़ा अब भी उस पर बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सोशल इनहिबिशंस आर आल्सो, कि एक मैं उधर हम गए हुए थे अफसल और सदर के साथ थे, मेरा इस्माइल खान यूनिवर्सिटी में एक लड़की जिसको हमने सेलेक्ट किया एज लेक्चरर, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे एक परफॉर्म करवाना चाहती थी रिलीजियस प्रॉस्टिट्यूशन, ठीक है, तो मुझे डेरा इस्माइल खान के लोगों ने ये परफॉर्म नहीं करनी है। तो मैंने कहा ज़ाहिर है आपकी गलती है, आप प्रॉस्टिट्यूशन का लफ्ज़ इतना बड़ा लफ्ज़ आप डेरा इस्माइल खान में जब यूज़ करेंगी, आप रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन कह रही थी, कुछ और रिलीजियस ब्लैकमेलिंग कह रही थी, शायद आपको परफॉर्म करने देते। द वर्ड दैट यू यूज्ड, तो जाहिर है वो आपको ऐसा तो नहीं वो लोग करने